I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop you, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable. Yeah, let's go. I don't care what they all say. That's right, I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. Okay, we work hard, then we all play. Yeah, I'm addicted to the grind, man. That's right, so I refuse to waste time, man. Yeah, one day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track. In addiction to the fact that we're winning, still we lack something's missing. Need a track that is hitting, making racks, making millions. If you ask, that's the mission. I don't waste time, no, I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop you, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art. Hey guys, what's up? So आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने वीडियो नहीं डाली थी बिकॉज मैं बहुत बिज़ी था और मेरे पास टाइम भी नहीं था एडिट करने का, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लिप्स हो जाती हैं, 2-3 घंटे उनको एडिट करने में टाइम लगता है, मतलब कि रेंडर होने में टाइम लगता है, एडिट करने में टाइम नहीं लगता। तो एक्सपोर्ट होने में टाइम लगता है, तो बस उतने टाइम बिज़ी रहता है, मैं डाल नहीं रहा था वीडियो से। बट आज मेरा जो सिलेबस है, जो
सेमी कंडक्टर है वो हो गया ख़त्म। मैंने सेमी कंडक्टर ख़त्म कर दिया, 2 दिन में ही ख़त्म हो गया। बहुत छोटा चैप्टर था, आई मीन मुश्किल से 4 लेक्चर्स होंगे, 2 आवर्स के मेरे 2 थे, और एक 3 आवर्स का था और एक सिंगल 1 आवर का जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस थी खाली। सो यस, सेमी कंडक्टर्स ख़त्म हो गया। एंड भाई सेमी कंडक्टर अच्छा लगा यार पबजी, मतलब काफ़ी अलग सब्जेक्ट, मतलब चैप्टर थोड़ा अलग था। मतलब ऐसे जो एक ट्रेंड फॉलो करता है फिज़िक्स की, थोड़ा उसमें थ्योरी होगी, थोड़े कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होंगे, वो सब थोड़ा कम था यार इसमें मतलब कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जो डायगोट जो होते हैं और जो रेजिस्टेंस होता है उसमें काफ़ी मतलब अंतर है, जो था फिर सही लगा। थोड़ा बहुत जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था वो सर्किट्स वगैरह बनाने में वो काम आया था, बहुत सही था। सो यस, अभी मेरा जो फिज़िक्स का सिलेबस है ये एक्सपेक्टेड है कि 20 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है ही नहीं, इसमें कुछ बचा ही नहीं है अब। अगर देखो ऑप्टिक्स जो है वो मैं करने वाला हूँ नवंबर में जब सर कराएंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, चैप्टर है, माय बैड, ये चैप्टर है, उसके लिए तुमको चाहिए डीप फोकस। और दूसरी बात वो इलेक्ट्रिक करंट है नहीं, और दूसरी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो, वो इलेक्ट्रिक पार्ट है नहीं। जितना हम लोग 12th में पढ़ रहे हैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, वो है नहीं, वो है मैकेनिक का पार्ट। आई मीन मतलब वो करेक्ट वर्ड मुझे पता नहीं हो क्या बोलते हैं उस पर। सो यस, ऑप्टिक्स जो है वो मैं नवंबर में करने वाला हूँ, जब अपना NLM काइनेमेटिक्स ये सब मैं रिवाइज़ कर लूँगा अच्छे से, तब मैं करने वाला हूँ। क्योंकि सर ने बोला था कि NLM ना रिवाइज़ करो, एटलीस्ट काइनेमेटिक्स रिवाइज़ कर लेना। सो मैं जब अगस्त की बात ख़त्म हो जाएगी ऑब्वियस है, उसको सब बंद करके बैठ होने जाऊँगा। फिर अपना 11th का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मॉड्यूल है वो लगाएंगे, HCV वर्मा HCV वो लगाएंगे, और बस और यही सब करेंगे भाई। और अगर ये सब हो गया तो फिर सिंगेज वगैरह और एडोब वगैरह भी देख लेंगे भाई, वो तो अभी भी सपना ही लगता है सॉल्व करने के लिए। अरे भाई, सो वैसे भी अभी मैं जो टारगेट कर रहा हूँ वो जे एडवांस टारगेट है नहीं, मैं जेई मेंस 2025 टारगेट है, वो भी पहला अटैम्प्ट जो जनवरी अटैम्प्ट है वही। सो अगर उसको टेक्निकली देखें तो आज 35th डे हो गया मेरी प्रिपरेशन का, 66 महीने का, यस 180 दिन लगभग थे, 6 महीने में होते हैं, हाँ इतने ही होते हैं। और उसका 35th डे है आज। और आज 6 अगस्त, अभी 6 अगस्त हो गया, मतलब 2 घंटा पहले। तो ये 6 अगस्त, और मैंने अपना कंप्लीट कर लिया। तो अब मेरा बचा क्या है, देखो अभी मेरा बचा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मॉडर्न फिज़िक्स। तो मॉडर्न फिज़िक्स का मैंने थोड़ा पढ़ा था, लेकिन मॉडर्न फिज़िक्स में थोड़ा कम समझ में आया, तो मैंने इसलिए सेमी कंडक्टर्स पढ़ लिया। ऐसा नहीं मैंने मॉडर्न फिज़िक्स एकदम छुआ नहीं है, हाँ उसको छुआ है, लेकिन उसको थोड़ा कम छुआ है क्योंकि थोड़ा समझ में कम आ रहा था, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री लगी पड़ी है, केमिस्ट्री मुझे आती नहीं इतनी अच्छे से। तो मैंने पहले केमिस्ट्री का जो एटम स्ट्रक्चर है ना, नहीं एटमिक स्ट्रक्चर, भाई आई डोंट नो भाई क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यस एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसको रिवाइज़ करा है। तो हाँ आज मैं अभी जब सोने जाऊँगा ओबियसली सो कल सुबह उठूँगा तो उसके बाद मैं मॉडर्न फिजिक्स से शुरू करना। और मॉडर्न फिजिक्स आपसे तो बड़ा नहीं, वो भी एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 4 लेक्चर्स हैं छोटे छोटे, 2 तो 1-1 घंटे के हैं और एक है 2 घंटा 40 मिनट का। और पहला लेक्चर बड़ा था वो मैंने कर लिया था, तो पहला लेक्चर जस्ट मुझे जो नोट्स लिखे हैं मैंने उसको बस खोल के रिवाइज़ करूँगा, बाकी हो जाएगा मेरा। थोड़े इजी क्वेश्चंस लगा लेंगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। यार तुम्हारे साथ कभी ऐसा होता है कि तुम कुछ थ्योरी पढ़ो या सर समझाए तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ समझ में आती है? मेरे साथ तो भाई हमेशा होता है कि मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं क्या करता हूँ उसके थोड़े ईजी से मॉडरेट क्वेश्चन लगा लेता हूँ 4 से 5, तो उससे थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई। सो और देखो मैं फिज़िक्स के साथ साथ पैरेलल में IOC चला रहा हूँ इनऑर्गेनिक। देखो अभी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छुई नहीं है, और तुम लोग जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है जेई में, मेंस हो चाहे एडवांस हो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इनऑर्गेनिक इतनी नहीं आती है, लेकिन इनऑर्गेनिक ना मुझे आसान लगती है, इस वजह से मैं अपना वही आसान जो सब्जेक्ट्स हैं वो निपटा लो पहले, फिर मुश्किल उठाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। देखो कोई ऐसा बेवकूफ़ नहीं होगा जो इनऑर्गेनिक के साथ मैथमेटिक्स उठाएगा, लेकिन मैं हूँ ना किस काम का भाई, मैं हूँ
भाई मैंने उठाऊंगा, लेकिन देखो इनऑर्गेनिक और मैथमेटिक्स में कम मतलब मुझे ऐसे सब्जेक्ट बचे हैं जिनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो ऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस, जब तक जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी, जितना स्ट्रक्चर का तुम नोटेशन बनाओगे उतनी अच्छी होगी तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी मैथमेटिक्स का भी सेम टू सेम खेल यही है, जितना उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो अल्टीमेट जो गोल रह जाएगा वो बचेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो सारे क्वेश्चन थ्योरी वाली चीज़ें हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पूरी थ्योरी वाली है, तो इसको अच्छे से करना। फिजिकल केमिस्ट्री इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। फिजिक्स है इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, और मैं मानूंगा 40-60 का रेशियो है, क्योंकि 40% थ्योरी है इसमें, और वो रिमेंबर भी रखनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू जो मॉडर्न फिजिक्स है। ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। मैं सब्जेक्ट क्यों बोलता हूँ, चैप्टर, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। और जो सेमीकंडक्टर ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। जितना मॉडर्न फिजिक्स का पूरा पार्ट है ना, ये सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। और बात रही ऑप्टिक्स की, तो इसमें मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स मुझे मतलब आती है बहुत अच्छे से, लेकिन थोड़ी सी डल हो गई, तो ब्रशअप करनी पड़ेगी उसको बस। बाकी तो यही है कि मेरा फिज़िक्स तो अगस्त 20 अगस्त तक, नहीं तो मेरा अगस्त लास्ट तक मेरा पूरा फिज़िक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर मेरा जो गोल है, अल्टीमेट गोल है, वो सितंबर अक्टूबर, ये 2 महीने मैं ऑर्गेनिक अपनी ख़त्म कर दूँ। यस, मैं ऑर्गेनिक अपनी ख़त्म कर दूँ। देखो मैं आईओसी चला रहा हूँ पैरेलल में, और मेरा आईओसी आज या कल में ख़त्म हो जाएगा। मेरा ब्लॉक है वो आज या कल में ख़त्म हो जाएगा। फिर अपन लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक ये सब उठा सकते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली इजी चैप्टर्स हैं। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पी ब्लॉक, डी ए ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये सब बहुत इजी चैप्टर्स हैं, खासतौर पे 11th के। फिर 12th को रिविज़न करना है, और बचेंगे उसके मेरे नवंबर एंड दिसंबर। तो नवंबर में अपन लोग फिज़िक्स पढ़ लेंगे साथ साथ सलीम सर के, जब वो पढ़ाएंगे। उसके बाद बस, और फिर डीपीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बचेगा, तो वो करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, दैट सिंपल। और थोड़ा जनवरी के स्टार्टिंग के मंथ अगर लक रहा तो शिफ्ट बाद में आए 27-28 तारीख की, तो ऑलमोस्ट 1 महीना, तो 3 महीने अपने पास इसके रहेंगे बस। और क्या, दैट्स इट, सिंपल। सो या टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय। कल मिलते हैं, बाय। मुझे नहीं पता कब मिलेंगे, बाय।